دوستو بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ رات والی ایپیسوڈ پر آپ نے اچھا رسپانس دکھایا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ امید ہے آج والی ایپیسوڈ بھی آپ کو پسند آئے گی۔ چلتے ہیں مزیدار ایپیسوڈ کی طرف۔ میں بیڈ پر بالکل سیدھا لیٹا ہوا تھا اور میرے پیروں سے چپل بھی اتری ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کس حال میں کن سوچوں میں مبتلا ہو گیا۔ میں نے دیوار پر لگے کلاک پر نظر ڈالی تو 10 بج رہے تھے۔ رات کے 10 بجے کا سمجھ کر اٹھ کر واش روم گیا۔ واش روم سے فارغ ہو کر میں واپس بیڈ پر بیٹھ کر ٹراؤزر کی جیب سے موبائل نکال کر جب میں نے موبائل کی سکرین پر نظر ڈالی تو 50 مس کالیں لگی ہوئی تھیں، اور ساتھ ہی جب ٹائم پر نظر پڑی تو پی ایم کی جگہ اے ایم لکھا نظر آیا، جس کا مطلب تھا کہ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ میں جلدی سے مس کالیں چیک کرنے لگا۔ کچھ جہازیب خان کے نمبر کی کالیں تھیں، کچھ صوفی کے نمبر سے اور کچھ ڈیرے کے نمبر کی کالیں آئی تھیں۔ میں نے پہلے ڈیرے کے نمبر پر کال کی تو بیلنس ناکافی ہونے کا پیغام ملا۔ میں ماتھا پیٹ کر رہ گیا کہ سیالکوٹ نکلتے وقت راستے سے کم از کم بیلنس تو کروا لیتا۔ اسی دوران دروازہ کھلا تو صبیحہ خاتون کا چہرہ نمودار ہوا، جو شاید تھوڑا سا دروازہ کھول کر دیکھنے آئی تھی کہ میں جاگ گیا ہوں یا ابھی تک سو رہا ہوں۔ مجھے بیٹھا دیکھ کر صبیحہ خاتون اندر داخل ہوتے ہوئے بولی، اٹھ جناب۔ میں نے کہا جی مہم۔ صبیحہ خاتون بولی، توبہ ہے یاسر، تم اتنا زیادہ سوتے ہو اور وہ بھی اتنی بے خبر ہو کر۔ میں کسیانہ ہو کر بولا، سوری میم، مجھے پہلی دفعہ اتنی گہری نیند آئی تھی۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی رات کے 10 بجے ہیں، مگر موبائل پر دیکھا کہ دن کے 10 بج رہے ہیں۔ صبیحہ خاتون میرے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ تم ٹانگیں نیچے لٹکا کر جوتا پہنے ہوئے بے خبر سو رہے تھے، اور میں نے تمہیں کتنی آوازیں دیں، تمہیں اس کا بھی علم نہیں ہوا ہوگا۔ میں کھسیانہ سا ہو کر سر جھکاتے ہوئے بولا، میم میں تو ویسے ہی بیٹھا تھا، مگر نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اب کب آئیں اور کب مجھے آوازیں دیں۔ صبیحہ خاتون مسکراتے ہوئے میری کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، ڈونٹ وری، ایسا ہو جاتا ہے۔ میں رات کو تمہیں کھانے کے لیے کہنے آئی تھی، مگر جناب بے خبر سو رہے تھے۔ پھر میں نے تمہیں زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا اور تمہیں بیڈ پر سیدھا لٹانے کے بعد میں اپنے کمرے چلی گئی تھی۔ میں شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، یعنی اپنے میرا جوتا اتار کر میری ٹانگیں اوپر بیڈ پر کر دی تھیں۔ صبیحہ خاتون مسکراتے ہوئے بولی، تو اس میں کیا حرج ہے، دوستی میں اتنا سا تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ چلو شاباش، اب بستر چھوڑو اور چل کر ناشتہ کرو، میں نے بھی رات کا کچھ نہیں کھایا۔ یہ کہہ کر صبیحہ خاتون پیٹ پر ہاتھ رکھ کر منہ بسورتے ہوئے بولی، خود کو بھی بھوک لگی ہے۔ صبیحہ خاتون کی بات سن کر میں چونک کر بولا، کیوں میم، اپنے بھی رات کا کھانا نہیں کھایا تھا؟ صبیحہ خاتون بولی، کیونکہ تم نے جو نہیں کھایا تھا، اب تمہارے ساتھ کھانا کھانے کی مجھے عادت ہو گئی ہے، اکیلے کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، چلو چل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ میں گہری سوچ میں مبتلا صبیحہ خاتون کے ساتھ کمرے سے نکل کر اس کے بیڈ روم کی جانب چل پڑا، کیونکہ ناشتہ مجھے وہیں کرنا تھا۔ صبیحہ خاتون نے گاؤن پہنا ہوا تھا، مگر وہ ایسا سلک وغیرہ کا گاؤن نہیں تھا جس میں سے اس کا سب کچھ نمایاں ہوتا ہو۔ شاید اسی لیے وہ گاؤن پہنے ہوئے ہی میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ سوئمنگ پول روم بڑے ہال والا کمرہ تھا جو چاروں اطراف سے بند تھا، اس لیے اسے سوئمنگ پول روم کہا جاتا ہے۔ اس میں ہونے والے واقعے کے بعد صبیحہ خاتون کی طبیعت میں سنجیدگی ختم ہو کر پہلے سے زیادہ جلاپن اور شوخ بھرا انداز پیدا ہو گیا تھا۔ اب وہ میرے ساتھ ایسے فرینکلی بات کر رہی تھی جیسے ہم دونوں بہت گہرے دوست ہوں اور ہماری عمر بھی ایک ہو، مگر میں تھوڑا سا لمٹ میں رہ کر صبیحہ خاتون کی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر صبیحہ خاتون بولی، آج کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا، جیسے آپ کہیں۔ صبیحہ خاتون چند لمحے سوچنے کے بعد بولی، ایسا کرتے ہیں، آج ہم کمرے میں ہی رہتے ہیں، کل باہر گھومنے چلیں گے اور اگر موقع ملا تو شاپنگ بھی کر لیں گے۔ میں نے کہا، جی ٹھیک ہے، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ صبیحہ خاتون بولی، اوکے، پھر دن ہو گیا، آج سارا دن ہم دل کھول کر ایک دوسرے سے باتیں کریں گے اور آج تمہیں ایک اسپیشل سرپرائز بھی دوں گی۔ میں چونک کر بولا، کون سا سرپرائز میم؟ صبیحہ خاتون بولی، اگر ابھی بتا دیا تو پھر وہ سرپرائز ہی نہ ہوا، اس لیے وقت آنے پر تمہیں خود ہی معلوم پڑ جائے گا۔ صبیحہ خاتون کے سرپرائز نے مجھے ایک بار پھر تجسس میں ڈال دیا۔ اب میں ضد بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے ابھی بتائیں، اور جاننے کے لیے مرا جی چاہ رہا تھا، کیونکہ اس کا ہر سرپرائز میرے جذبات کو بھڑکانے والا تھا۔ میں نے کہا، اوکے میم، آپ کا سرپرائز بھی دیکھ لوں گا۔ صبیحہ خاتون صوفے سے اٹھ کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل کا دراز کھول کر ریموٹ نکال کر بیڈ کے سامنے الماری میں نصب بڑے سائز کے ٹی وی کو آن کر کے چینل بدلتے ہوئے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی، یاسر ادھر آ جاؤ، کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں۔ ٹی وی کے نیچے بڑے سائز کے ووفر نیٹ نما اسپیکر الماری میں کیے ہوئے تھے اور سی ڈی پلیئر بھی بڑی نفاست سے الماری میں فٹ تھا۔ پورا ڈیجیٹل میوزک سسٹم ایک جگہ نصب کیا ہوا تھا۔
सबीहा खातून तो इन चीज़ों की भी शौकीन थी, ये भी मुझे यहाँ आकर इल्म हुआ था। वहाँ सियालकोट में भी अपने बेडरूम में ये सब यकीनन रखा ही होगा। मैं उठकर सबीहा खातून के पहलू में मोहतात अंदाज में टांगें पीछे बिछाकर बैठ गया, जबकि सबीहा खातून यूं बेबाकी का मुजाहरा कर रही थी जैसे मैं इसके लिए नामहरम की बजाय मुहर्रम हूँ। गाउन पहनने के बावजूद सबीहा खातून टांगें सीधी करके टेक लगाए रानों पर हाथ रखकर हाथ में पकड़े रिमोट से चैनल बदलते हुए बोली, क्या देखना पसंद करोगे, मूवी या गीत या फिर कुछ और? ये कहते हुए सबीहा खातून ने मेरी जानिब अपना हाथ बढ़ाया और इतने ही लम्हे सबीहा खातून ने मेरा हाथ पकड़कर अंगूठे से मेरे हाथ को सहलाना शुरू कर दिया। सबीहा खातून ठरक झाड़ने वाले अंदाज में मेरे हाथ पर अंगूठा फेर रही थी। एक तरफ सरप्राइज देने की उम्मीद, दूसरी तरफ मुझे अपने पहलू में बिठाकर गाउन पहने हुए मेरे जज्बात को भड़काना। अब पता नहीं क्या गिल खिलने वाला था, वो भी सुबह सुबह। मुझे खामोश देखकर सबीहा खातून मेरे हाथ की पुश्त पर रखा अंगूठा हाथ पर दबाकर बोली, बोलो भी क्या देखोगे? मैं सबीहा खातून की जानिब देखकर बोला, जो आपको पसंद है वो लगा लें। सबीहा खातून निचला होंठ बाहर लटका कर मुंह बिसोर कर मेरी तरफ देखकर बोली, यासिर तुम इतने बोर क्यों हो? यार हम दोस्त हैं, इजी होकर बैठो, अगर कोई परेशानी है तो खिल कर बताओ। मैंने कहा, नहीं मैम, परेशानी तो कोई नहीं है। सबीहा खातून बोली, फिर चुपचाप क्यों हो, तुम बैठे मेरे पास हो और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। मैंने कहा, मैम वो रात को मेरे नंबर पर जहांजेब खान की कॉल्स आती रही थी, तब मैं सोया था, इस वक्त मुझे मालूम नहीं पड़ा। सुबह मैंने उठकर देखा तो जहांजेब खान और घर के नंबर से सूफी की कॉल आई हुई थी। मैंने बैक कॉल करना चाही मगर मेरे बैलेंस खत्म था। सियालकोट निकलते मेरे जहन में नहीं रहा कि रास्ते में कार्ड ले लेता। सबीहा खातून बोली, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है, जहांजेब खान से मेरी बात हो चुकी है। बाकी अगर तुम घर कॉल करना चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारे नंबर पर कार्ड फीड करवा देती हूँ, अब फिर तुम यहाँ नंबर से कॉल कर लो। मैंने कहा, मैम मैं मोबाइल से ही कॉल कर लूँगा, अगर आप कार्ड फीड करवा दें तो मेहरबानी होगी। मेरी बात सुनकर सबीहा खातून बोली, बस इतनी सी बात पर तुम कब से परेशान बैठे हो, पहले बता देते अब तक बैलेंस भी हो जाता था। मैं अभी जहांजेब खान को कॉल करती हूँ, वो करवा देगा, इसके पास तुम्हारा नंबर भी है। मैं हम कहकर खामोश हो गया। दरअसल मुझे असल टेंशन शादी की थी कि वो मुझे क्यों कॉल कर रहा था, बाकी तो खैर थी, वो तो नॉर्मल में भी कॉलें आती रहती थीं। सबीहा खातून साइड टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लग गई। कुछ ही देर में जहांजेब खान से बात होने के बाद सबीहा खातून ने इसे 2000 का बैलेंस करवाने का कहा और मजीद कुछ मालूमात लेने के बाद कॉल बंद करके मेरी जानिब देखकर बोली, अभी 15-20 मिनट तक बैलेंस आ जाएगा। मैंने कहा, मैम अब 300 का बैलेंस करवा देती, अब बैलेंस करवाने की क्या जरूरत थी? सबीहा खातून हैरानगी से बोली, 300 का बैलेंस जाने दो, बच्चे क्यों मुझे शर्मिंदा करवाना था। अब 300 बैलेंस करवाने का कहती तो जहांजेब खान किया सोचता। मैं हम कहकर बोला, शुक्रिया मैम। सबीहा खातून मसनूई गुस्से का इजहार करते हुए मुंह बिसोर कर बोली, बच्चे मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अब अगर तुमने किसी बात पर शुक्रिया कहा तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मैं जयपत्ती हुए बोला, सॉरी मैम। सबीहा खातून जल्दी से बोली, और हाँ यासिर, अब मैम शेम कहना बंद करो। आज के बाद जब भी हम कमरे में होंगे या फिर कहीं भी अकेले हों तो तब तुमने मुझे बेगम साहिबा आ मैम नहीं कहना, बल्कि तुम मुझे सूबी कहोगे। सबीहा खातून की बात सुनकर मैं चौंक कर पूरा सबीहा खातून की जानिब घूम कर बोला, सूबी। सबीहा खातून बोली, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें सूबी नाम पसंद नहीं? ये मेरा नकनीम है, मेरे अम्मी अबू बहन भाई बल्कि क्लास फेलोज भी मुझे सूबी कहते थे। अब तो अपना नकनीम सुनने को कान तरस गए हैं। जब कभी भाई से या आपी से बात होती है तब सूबी सुनने को मिलता है, वरना हर वक्त बेगम साहिबा और मैम सुनकर मुझे अपना नकनीम तो किया, असल नाम भी पुराना पुराना लगने लगा है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, वाह मैम, आपका इतना प्यारा नकनीम है, मुझे तो आज मालूम पड़ रहा है, वरना मैं तो सबीहा खातून ही सुनता आ रहा था। सबीहा खातून खुशी से हंसते हुए बोली, नहीं, मेरा नकनीम पसंद आया है। मैंने कहा, बहुत ज्यादा। सबीहा खातून बोली, तो फिर आज के बाद तुम्हारे मुंह से मैं सूबी ही सुनूंगी। मैंने मौका गनीमत जानकर मुस्कुराते हुए कहा, और क्या मैं भी अब से गुजारिश कर सकता हूँ? सबीहा खातून मुस्कुराते हुए बोली, क्या? मैंने कहा, अब मुझे बच्चे मत कहा करें, बल्कि मेरे नाम से मुझे पुकारा करें।
मेरी बात सुनकर सबीहा खातून दिल खोलकर हंसने लगी, जबकि मैं नजरें चरा कर उसको देखे जा रहा था जो मेरे जज्बात को गर्म और अक्ल को बंद कर रहे थे। सबीहा खातून हंसी रोक कर बोली, अगर तुम्हें मैं बच्चे कहना पसंद नहीं था तो पहले ही बता देते। मैं एक्टिंग करते हुए कहा, दरअसल मैंने इसलिए नहीं कहा कि नहीं अब बुरा ना मान जाएं। सबीहा खातून हंसते हुए हाथ का इशारा करते हुए बोली, कोई हाल गुस्सा नहीं तुम्हारा। वैसे भी तुम्हें पहले भी कह चुकी हूं कि मैं तुम्हारी बात का गुस्सा नहीं करती। और रही बच्चे कहने वाली बात, तो दरअसल ये शुरू से मेरी आदत में शामिल, बल्कि अब तो ये मेरा तकिया कलाम बनकर रह गया है। खैर तुम टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हें यासिर ही कहा करूंगी और तुम मुझे किस नाम से पुकारा करोगे? मैं जल्दी से बोला, सूबी। मेरे मुंह से सूबी सुनकर सबीहा खातून मुझ पर सदक़े वारी जाने वाले अंदाज में बोली, हाय सदक़े जाऊं, तुम्हारे मुंह से कितना प्यारा लग रहा है, एक बार फिर कहना। मैंने फिर से कहा, सूबी। सबीहा खातून मुस्कुराते हुए बोली, काश तुम सब के सामने मुझे इस नाम से पुकार सकते, मगर क्या करूं, कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं जिनकी वजह से अपनी मनपसंद ख्वाहिशात को दफन करना पड़ता है। मैंने कहा, मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं। आप मेरी तरफ से फिक्र न करें, मुझे अच्छे से पता है कि कब और किस वक्त आपको किस नाम से मुखातिब करना है। सबीहा खातून मेरी गाल पर चुटकी काट कर मेरी गाल हिलाते हुए बोली, सो क्यूट डार्लिंग, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सबीहा खातून मुझे छूने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रही थी, जबकि मैं अभी तक खुद को कंट्रोल किए हुए था। अगर मेरी समझदारी आड़े ना आई होती तो सबीहा खातून को मैं बता देता कि जवान लड़के के जज्बात के साथ खेलने का अंजाम क्या होता है। हम दोनों एक दूसरे की जानिब देखकर बातें कर रहे थे कि इसी दौरान कानों में आवाज पड़ी, दूरी रहे ना कोई, आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओगी। के बोल ही इतने रोमांटिक थे कि हम दोनों चौंक कर टीवी की जानिब देखने लगे जहां ये गाना चल रहा था। सबीहा खातून ने अपनी रान से रिमोट उठाकर एक तरफ रखकर गहरी सांस लेते हुए हाय कहकर मेरी जानिब देखते हुए साथ साथ गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया। साथ ही सबीहा खातून ने मेरे हाथ के ऊपर से अंगूठा हटाकर मेरी उंगलियों में अपने हाथ की उंगलियों को फंसा कर पंजा किस लिया। मैं सबीहा खातून की हरकत और उसकी नज़रों को अच्छी तरह महसूस कर रहा था। मेरी नज़रें टीवी की स्क्रीन पर थीं, जबकि मेरा दिमाग सबीहा खातून की हरकत और सकनात पर लगा हुआ था। गाने के अल्फाज मेरी तबीयत पर भी असरअंदाज हो रहे थे, मगर मैं अपनी फीलिंग को तब जाहिर करता जब सूफी मेरे पहलू में बैठी होती। सबीहा खातून फुल गाने रोमांटिक अंदाज से हर बोल को कुरेदते हुए गा रही थी और साथ ही कभी मेरी उंगलियों में शिकंजा किस लेती, कभी हाथ को दाएं बाएं हरकत देने लग जाती। मुझे खामोश और साकित बैठे देखकर सबीहा खातून मेरे हाथ को झटका देते हुए बोली, बोलो यार। मैंने चौंक कर टीवी से नजरें हटाकर सबीहा खातून की जानिब सवाल भरी नजरों से देखा। सबीहा खातून बोली, किधर खो गए हो? मैं जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कहीं भी नहीं, मैं गाना सुन रहा था। सबीहा खातून बोली, तुम्हें ऐसी रोमांटिक गाने पसंद हैं? मैंने कहा, पहले बहुत पसंद होते थे, अब इतना वक्त ही नहीं होता कि गाने मूवी देखूं। सबीहा खातून बोली, क्यों, अब तुम बूढ़े हो गए हो या फिर तुम्हारे जज्बात दम तोड़ गए हैं? सबीहा खातून की बात सुनकर मुझे यूं लगा जैसे इसने मेरी मर्दांगी को ललकारा हो। हालांकि मैं अभी तक किसी वजह से खुद पर कंट्रोल कर रहा था, वरना इसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो आग के साथ खेल रही है। सबीहा खातून की बात सुनकर मैंने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है। सबीहा खातून बोली, तो फिर क्या बात है? मैं देख रही हूं कि तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैं करीब बैठकर कोफ्त बढ़ा रही हूं। मैं जल्दी से बोला, नहीं मैम, ओ सॉरी सूबी, दरअसल मैं पहली दफा आपके पास। सबीहा खातून मेरी बात काटते हुए बोली, वो अब नहीं, तुम कहो। जब तुम मुझे अब कहते हो तो मुझे यूं लगता है जैसे तुम मेरे एहतराम में बंधे हुए मुझे मुखातिब कर रहे हो। मैंने तुम्हें कहा भी है कि जब हम दोनों कमरे में कहीं भी अकेले हों तो हम दोस्त हैं, सबके सामने तुम जैसा अच्छा लगे वैसे कह लिया करना। आई डोंट माइंड। मैं मुस्कुराते हुए बोला, ओके जी। सबीहा खातून मुस्कुरा कर बोली, अच्छा तो तुम क्या कहने लगे थे? मैंने अब सोच लिया था कि अब मैं इससे फ्रैंकली ही बात करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए मैं अब से तुम पर आते हुए बोला, दरअसल मैं पहली दफा तुम्हारे साथ अकेले में वक्त गुजार रहा हूं, इसलिए मुझे थोड़ी जेजे का महसूस हो रही है। वरना मेरी अधूरी बात सुनकर सबीहा खातून बेसब्री से बोली, वरना क्या? मैं मुस्कुराते हुए बोला, वरना मैं इस कदर शरारती हूं कि चंद लम्हों में तुम मेरी हरकतों से तंग आ जाओ।
सबीहा खातून बोली, मैं और तुम्हारी हरकतों से तंग आ जाऊं कभी सोचना भी ना। मैं सबीहा खातून की जानिब मशकूक अंदाज में देखते हुए बोला, देख लो फिर ये बाद में न कहना कि मैं बदतमीज हूं। सबीहा खातून बोली, यासिर मैं तुम्हें एक बात क्लियर करती जाऊं ताकि तुम्हारे दिमाग में मेरे मुताल्लिक किसी किस्म की बदगुमानी पैदा ना हो और तुम मेरे बारे में कोई गलत राय कायम कर बैठो। तुम्हारे साथियों वगैरह पर तुम मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होगे कि मैं यहाँ आते ही तुम्हारे साथ इतनी घुल मिल क्यों गई हूँ। इसका भी एक खास वजह है। मैं सबीहा खातून की जानिब गौर से देखते हुए बोला, कौन सी वजह? सबीहा खातून बोली, जब गाड़ी में मुझे सीट से नीचे गिरा कर तुम मेरे ऊपर लेटे हुए थे तब पहली बार मैंने किसी मर्द को महसूस किया था। मुझे आज तक किसी नामहरम मर्द ने छुआ तक नहीं था। शायद इसीलिए कभी मुझे शादी करने की तड़प महसूस नहीं हुई। एक तो तुम पहले दिन से मुझे अच्छे लगने लगे थे। जब तुम्हारे वजूद को अपने वजूद से लिपटे महसूस किया तो तब मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि इस वक्त मेरी फीलिंग क्या थी। अगर हालात संजीदा ना होते तो शायद मैं तुम्हें अपने ऊपर से हटने ना देती। तब से लेकर अब तक मैं खुद को तुमसे दूर नहीं रख पा रही। मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मुझे हो क्या गया है। जिंदगी में पहली बार मेरी ऐसी हालत हो रही है। बस मेरा दिल करता है कि तुम यूं ही मेरे पास बैठे रहो और मैं तुमसे बातें करती रहूं। आखिर सबीहा खातून के दिल की बातें ज़बान पर आ ही गईं। मगर मैंने भी दिमाग में प्लान तैयार कर रखा था कि जब भी सबीहा खातून इस तरह की जज्बाती बातें करेगी तब मैं इससे दो टोक बात कर दूंगा ताकि वो किसी खुशफहमी में मुब्तला ना रहे। मैं गहरी सांस लेकर बोला, सुबी तुम अगर ये सब बातें बाद में भी बताती तो तब भी मुझे तुम्हारी बदली हुई कैफियत का अंदाज़ा हो गया था। मैं जानबूझकर खामोश था क्योंकि मैं ये सब बातें तुम्हारे मुंह से सुनने का इंतज़ार कर रहा था। देखो सूबी, मैं भी एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। सबीहा खातून बोली, कौन सी बात? मैं चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, इस बार मैं ज़रा बराबर भी शक नहीं कि मैं तुम्हारी दिल से इज्जत करता हूँ और बेलोस मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ, मगर जो बात मैं तुम्हें क्लियर करना चाहता हूँ वो लाजमी है ताकि हमारी दोस्ती और हमारे बीच एतमाद का रिश्ता हमेशा कायम रहे। शायद तुम्हें सूफी के बारे में इल्म हो जो मेरी मंगेतर है और जिसके लिए मैं इंडिया गया था। सबीहा खातून गौर से मेरी बातें सुनते हुए हल्का हल्का मुस्करा रही थी। सबीहा खातून पलकों को झपका कर बोली, हाँ मैं बहुत अच्छे से सूफी को जानती हूँ और तुम दोनों का आपस में जो रिश्ता है इसके बारे में मुझे अच्छी तरह मालूम है। तुम अपनी बात मुकम्मल करो। मैं चंद लम्हे खामोश रहा। सबीहा खातून की जानिब घूम कर चौकर मार कर बैठते हुए इसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर बोला, सूबी फिर तुम्हें इस बात का अच्छे से इल्म है कि मैं सूफी से कितनी मोहब्बत करता हूँ और मुझे सिर्फ इसी से ही शादी करनी है। इसके बगैर मैं एक सांस भी नहीं ले सकता। मेरी बात सुनकर सबीहा खातून ने लंबी सांस खींचकर सांस छोड़ते हुए आंखें बंद करके बेड की टेक के साथ टेक लगा ली। चंद लम्हे वो इसी पोजीशन में रही। इसके चेहरे पर कर्ब के तासुरात को मैं अच्छी तरह महसूस कर रहा था। चंद लम्हों बाद सबीहा खातून ने आंखें खोलकर एक बार फिर लंबा सांस छोड़ा और खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, तुम ये सब बातें मुझे ना भी बताते तो तब भी मुझे इन सब बातों का बाखूबी इल्म था। मैं तो ये भी जानती हूँ कि वो लोग पहले तुम्हारे साथ थे और अब कोठी के पीछे वाले पोर्शन में वो लोग रह रहे हैं। मगर फिर भी तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर अच्छा लगा। मेरा वादा है कि तुम दोनों के बीच कोई तीसरा नहीं आएगा, मगर मेरी एक शर्त है। मैंने कहा, कौन सी? सबीहा खातून बोली, हमारी दोस्ती में कोई तीसरा नहीं आएगा। मैं नासमझी के अंदाज में बोला, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। सबीहा खातून बोली, मतलब कि मेरे अलावा तुम किसी और लड़की को दोस्त नहीं बनाओगे। मैंने कहा, वो तो मैं पहले भी नहीं बनाता हूँ। जैसे हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, इसी तरह हर लड़की से थोड़ी बहुत सलाम दुआ होने पर वो दोस्त नहीं बन जाती, क्योंकि मेरे कुछ उसूल हैं। दोस्ती और दुश्मनी आखिरी दम तक निभाता हूँ, इसमें चाहे जान लेनी पड़े आजान देनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटता। मेरी बातें सुनकर सबीहा खातून दूसरे हाथ से मेरी गाल पर चुटकी काट कर मेरी गाल हिलाते हुए बोली, सो क्यों? ऐसे ही नहीं, पहली नज़र में मेरी आंख ने मेरा चुन लिया था। तुम अपने उसूलों पर पाबंद रहना और मैं अपने उसूलों पर, क्योंकि हम दोनों के उसूल एक ही जैसे हैं। बस कभी मुझे धोखा ना देना, बाकी सब खैर है। सबीहा खातून की बात सुनकर मैंने कहा,
जिस दिन आपको मेरे बारे में कोई बदगुमानी हो एक दफ़ा मुझसे लाजमी पूछ लेना ताकि मैं अपनी सफाई पेश कर सकूं। फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो तो फिर मुझे दूसरा सांस ना लेने देना। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह हमारे उसूल एक हैं इसी तरह हम अपने उसूलों पर भी हमेशा कायम रहेंगे। सबीहा खातून मुस्करा कर बोली, बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी बात बहुत अच्छे से समझ गई हूं कि तुम किस चीज़ से तंबी कर रहे हो। सबीहा खातून बेशक औरत है मगर सबीहा खातून का जिगर और ज़ुबान मर्दों जैसी है। और एक बात हमेशा याद रखना, सबीहा खातून को जो चीज़ पसंद हो वो कभी भी छीन कर अपना नहीं बनाती। अगर वो अपने आप हासिल हो जाए तो ठीक है, वरना सबीहा खातून सब्र करने वाली है। मैं मुस्करा कर बोला, वो तो मैं तुम्हें अच्छे से समझ गया हूं कि तुम क्या चीज़ हो। सबीहा खातून हल्का सा कहका लगाकर हंसते हुए बोली, वैसे आज तक कोई सबीहा खातून को समझ नहीं सका, तुम पहले शख्स हो जो इस चीज़ का दावा कर रहे हो। मैं मुस्करा कर बोला, और सबीहा खातून को छूने वाला और खलवत में इसकी कुर्बत हासिल करने वाला पहला शख्स भी ये नाचीज़ है। मेरी बात सुनकर सबीहा खातून खिलखिलाकर हंस पड़ी। सबीहा खातून हंसते हुए बोली, बहुत खूब, तुम मेरी तवक्को से भी ऊपर की शय हो। सबीहा खातून संजीदा अंदाज में जितनी खूबसूरत नजर आती थी हंसते हुए इसके हसन पर चार चांद लग जाते थे। उनकी खास वजह यह थी कि इसकी नरम गालों के दोनों अतराफ डिम्पल बन जाते थे। सबीहा खातून ने सुर्ख रंग का गाउन तंजेब किया हुआ था जो शनील के कपड़े में बना हुआ था। गाउन इस तर्ज का बना हुआ था कि मजाल थी कि उठते बैठते चलते फिरते कहीं से भी सबीहा खातून के जिस्म का कोई हिस्सा नजर आए। अभी भी सिर्फ छोटे सफ़ेद पाँव ही नजर आ रहे थे, हालांकि सबीहा खातून टांगें सीधी करके टेक लगाए बैठी हुई थी। सबीहा खातून ने जब मुझे तुम कहकर पुकारने पर इसरार किया था, उसकी फरमाइश के मुताबिक जब मैंने पहली बार इसे तुम कहकर पुकारा था तभी न जाने मेरे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत पैदा हो गई थी कि मैंने सूफी वाला मामला क्लियर करते हुए इससे दिल की बात शेयर कर दी थी ताकि इसे इस बात का इल्म हो जाए कि वो चाहे जो भी हो, जितनी भी हुसैन है, मगर मैं शादी सिर्फ सूफी से ही करूँगा। और ये सब बातें करने के बाद सबीहा खातून की तरफ से तसल्ली बख्श जवाब मिलने के बाद मैं मजीद रिलैक्स हो गया था क्योंकि दिमाग पर जो बोझ था वो हिट गया था। अब मैं सबीहा खातून के साथ बिल्कुल रिलैक्स होकर फ्रैंकली माहौल में बातें कर रहा था जैसे वो एक आम सी औरत होने के साथ मेरी गहरी दोस्त हो। बातों के दौरान मैंने इससे अपने जख्मी गार्ड्स के बारे में भी पूछा तो इसने बताया कि गार्ड्स को सियालकोट अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है, जबकि ड्राइवर को उनके वर्षा के सुपुर्द करके अच्छी खासी माली इमदाद भी कर दी गई है और पुलिस को भी फी अलहाल मुनहबंद करवा दिया गया है, इसलिए केस आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं था। बाकी वो कौन लोग थे इसका पता जहाज़ेब खान बहुत जल्द लगाने में कामयाब हो जाएगा। काफ़ी देर तक हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर बातें करते हुए खुशगवार लम्हों में मसरूफ रहे। टीवी पर गाने वगैरह सुनते रहे। जब हमारी बातों का सिलसिला टूटने लगा तो मैंने मौका गनीमत जानकर कहा, सूबी, तुमने मुझे सरप्राइज़ देना था, क्या वो सरप्राइज़ अभी मिलने का इम्कान है या फिर रात को? मैंने रात को का लफ्ज़ थोड़ा रोमांटिक अंदाज में कुरेदते हुए कहा। मेरी बात सुनकर सबीहा खातून बोली, अभी रात वाला सरप्राइज़ देने का वक्त नहीं आया। वैसे भी तुमने रात वाले सरप्राइज़ का दरवाज़ा बंद कर दिया है। मैंने जो तुम्हें सरप्राइज़ देना है वो बस कुछ ही देर बाद तुम्हें मिल जाएगा। इस प्राइज़ का वक्त आया तो वो भी मिल जाएगा। सबीहा खातून ने जिस तरह मेरे दो मानी वाले सवाल का जवाब भी दो मानी वाले अंदाज में दिया था, इसने मुझे लाजवाब कर दिया था क्योंकि रात वाले सरप्राइज़ का दरवाज़ा बंद करने का मतलब मैं अच्छे से समझ गया था। वैसे भी वो सरप्राइज़ मैं खुद भी नहीं लेना चाहता था। अब दिन वाला सरप्राइज़ किया था, इसका मुझे बेचैनी से इंतज़ार था, इसलिए मैंने दोबारा कहा, यानी अभी प्राइज़ मिलेगा। सबीहा खातून कलाक की तरफ देखकर बोली, हाँ जी अभी। ये कहकर सबीहा खातून टांगों को बेड से नीचे लटकाते हुए बोली, चलो आओ चली, तुम भी किया करोगे। सबीहा खातून को बेड से उतरते देखकर मैं चौंक गया क्योंकि मैं तो ये समझ रहा था कि सबीहा खातून कमरे में ही कोई सरप्राइज़ देगी, मगर शायद वो मुझे कहीं और ले जाना चाह रही थी। मैंने भी आ नहीं दिया, मैं झट से बोला, कहाँ जाना है? सबीहा खातून बोली, आओ तो सही बताती हूँ। ये कहकर सबीहा खातून टीवी के साथ बनी अलमारी के छोटे छोटे दराज खोलने लगी। एक दराज से सबीहा खातून ने पीले रंग की चौड़ी टेप निकाल ली। इस वक्त वो टेप अक्सर वीसीआर पर कार्टन पर लपेटी होती थी, जबकि आजकल वो टेप की सीएस पार्सल वगैरह पर और कई चीज़ों पर लपेटी नजर आती है।
मैं टेप को देखकर हैरान भी हुआ कि इसने टेप के साथ मुझे क्या सरप्राइज देना है। सबीहा खातून टेप पकड़े ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए बोली, आ जाओ। मैं नासमझी के अंदाज में कंधे उचक्का कर सबीहा खातून के पीछे राहदारी में दाखिल हुआ। सबीहा खातून सीधा चलती हुई सामने स्विमिंग पूल रूम के दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हुए पीछे मुड़कर मुझे देखकर अंदर आने का इशारा करते हुए बोली, आ जाओ यासिर। मैं अंदर दाखिल हुआ तो सबीहा खातून मेरी जानिब देखकर बोली, यासिर हम स्विमिंग कर लेते हैं। मैं सबीहा खातून को तंग करने के लिए मुस्कुराते हुए बोला, यार तुम स्विम किसे कहती हो ये तो मुझे इल्म नहीं, मगर बचपन में अपने गांव की नहर में खूब नहाया हुआ हूँ। मेरी बात सुनकर सबीहा खातून कहका लगाकर हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं तुम्हारा, इसी को स्विमिंग कहते हैं। स्विमिंग और स्विमिंग कौन सा पानी में कलाबाजियां लगाकर करते हैं। मैंने कहा, ओ अच्छा, यानी नहाने को स्विमिंग कहते हैं। अगर ये बात है तो फिर तो मैं स्विमिंग का काफी माहिर हूँ। सबीहा खातून मेरी बनावटी सादगी देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तो फिर देख लेती हूँ तुम कितने माहिर हो। मैं नासमझी के अंदाज में बोला, क्या मतलब? सबीहा खातून बोली, मतलब कि तुम स्विमिंग करोगे। मैंने कहा, अभी इस वक्त? सबीहा खातून बोली, क्यों, इस वक्त कोई मसला है? मैंने कहा, मसला तो कोई नहीं है, मगर मेरे बाजू पर जख्म है, कहीं पानी में भीग कर जख्म खराब ना हो जाए। सबीहा खातून बोली, इसकी तुम फिक्र न करो, इसका मेरे पास हल है। मैंने कहा, क्या हल है? सबीहा खातून हाथ में पकड़ी टेप मुझे दिखाते हुए बोली, ये वाला। सबीहा खातून के हाथ में पकड़ी टेप को देखकर मुझे अब समझ आई कि सबीहा खातून स्पेशल टेप क्यों लेकर आई है। मैं मुस्कुराते हुए इसे बोला, तो इसलिए तुम टेप लेकर आई हो, मैं तो डर गया था कि पता नहीं मेरे मुंह पर लगानी है। सबीहा खातून बोली, जल्दी से शर्ट उतारो, ये ना हो कि मैं सच में तुम्हारे मुंह पर टेप लगा दूं। सबीहा खातून की हरकत मुझे अजीब भी लग रही थी, बजाय खुद स्विमिंग करके मेरा दिल पिशोरी करने के मुझे बिला वजह ही स्विमिंग पूल में धकेल रही थी। खबर जो भी था, मैं सबीहा खातून का दिल नहीं तोड़ सकता था। उसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मैंने अपनी शर्ट उतार कर साइड पर रखी तो सबीहा खातून नशीले अंदाज में मेरी बॉडी देखने लग गई। गांव में रहते हुए जवान हुआ था, इसलिए मेरा जिस्म पहले ही कसरती टाइप था। बाजू और कंधों के मसल्स वगैरह बने हुए थे, मगर ट्रेनिंग की वजह से मजीद मसल्स नुमाया हो रहे थे। सबीहा खातून की आंखों में और उसके देखने के अंदाज में कमाल कशिश थी। सबीहा खातून होंठों को सुकड़ते हुए दुआ के कलमात कहते हुए बोली, वाह यासिर, तुम्हारी बॉडी की शेप और बनावट कितनी खूबसूरत है। ये कहते हुए सबीहा खातून हाथ में पकड़ी टेप फरेब पड़ी कुर्सी पर रखकर आगे बढ़ी और मेरे मुकाबिल खड़ी होकर दोनों हाथ मेरे कंधों पर रखकर पहले मेरी आंखों में देखा, फिर अगले ही लम्हे मेरे कंधे को देखते हुए दाएं जानिब वाला हाथ कंधे पर फेरते हुए हाथ को मेरे सीने की जानिब ले जाने लगी। दोस्तों, इस वक्त मेरी जो हालत थी, काश मैं अपनी हालत को लफ्जों में बयान कर सकता। सबीहा खातून का हाथ रेशम की तरह मुलायम और गुलाब की पत्ती की तरह नरम था। सबीहा खातून के नथनों से निकलने वाली गर्म सांसों मेरे चेहरे को सींक रही थी। पेट पर बंधी बेल्ट की गांठ मेरे हाथों की उंगलियों को बेचैन कर रही थी। हाथों की उंगलियों को रोकने के लिए मुझे मुट्ठियां भयन चुननी पड़ रही थीं, वरना शायद हाथ गुस्ताखी पर उतरते हुए एक ही झटके में कमरबंद की गांठ खोल देते।